So let's begin with the discussion of QA sectional test 8, starting with the selection of question. Let's go ahead. Question number 1, coordinate geometry. You could have skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 2, something from time, speed and distance. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 3, I guess something from permutation combination, sort of like that. So you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 4, averages, sorry, number system से related कुछ लग रहा है. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 5, set theory और geometric mean. तो you could have skipped it for now, although we are done with it. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 6, geometry लग रहा है. Okay, just give me 1 second. ठीक है. Question number 6, yes. This is something from geometry. You could have skipped it. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 7, maximum minimum. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 8, this is something from percentage. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 9, alligation mixture. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 10th, geometry. Skip it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 11, you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 12th, again this is something you could have attempted. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 13, time and work. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 14, functions. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 15, geometry. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 16, find the number of inequalities. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Yes. Question number 17, you could have skipped it for now because that's again from something from number system. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 18, quadratic equation. I guess you could have skipped it for now. Although we are done with it. So question number 18th को part 2 में डाल दीजिए. 19th seems to be like from number system. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 20, equation से related लग रहा है. You could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 21, ratio से लग रहा है. This is something you should have attempted. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 22, geometry. You could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Start. सबसे पहले कौन सा करना है? Second question. Second question. Anyone having a doubt in question number 2? Yes, sir. Yes, sir. Have a doubt. चलो देख लेते हैं. देख लेते हैं. Okay. Shruti and Smriti start simultaneously from the same point on a circular track. If they travel in opposite direction, they meet at 9 distinct points on the track. Whereas if they travel in the same direction, they meet at n distinct points, where n is a prime number. If Smriti's speed is s% less than that of Shruti, then which of the following can be a value of s? देखो, पहली चीज, again a wrong selection of question. This is something you shouldn't have selected. ठीक है, ये select नहीं करना चाहिए था, क्योंकि although time speed distance, but उसमें भी circular races में भी number of meeting points, तो बहुत ज्यादा technical हो जाएगा in case if I am going for this. But as of now अपन ने select कर लिया, तो मैं इसका solution बता देता हूँ. देखिए, opposite direction में x plus y होता है number of meetings. Yes, sir. Same direction में x minus y होगा. X minus Y. हाँ. And if the travel is this is n. और x minus y 9 से बड़ा होगा, छोटा होगा? छोटा होएगा. छोटा होगा. और n प्राइम नंबर भी है. हाँ. तो n क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7. बस. अगर n को 2 रखा, तो दिक्कत ये आएगी कि 2x इक्वल टू 11 हो जाएगा दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे, और x डेसिमल में आ नहीं सकता है. हाँ. मतलब ये गलत है. तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ये किया. तो n इक्वल टू 2 नहीं हो सकता. अगर n को 3 रखा, हाँ. X 6. तो x आ जाएगा 6, y आ जाएगा, सॉरी, x आ जाएगा 6 एंड y आ जाएगा 3. ठीक है.
और अगर n को 5 रखा तो x आ जाएगा 7. 7 और y आ जाएगा 2, 2. 2। और अगर x को 7 रखा तो 8, 8 और 1. 1. 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं. देखो जब 6:3 का रेशियो है ना तो ये कट के देगा 2:1। 2:1. हाँ. ठीक है, हम्म. प्रॉब्लम ये आएगी इसमें 7:2 और इसमें 8। अगर 1:8 लेते हैं तो 1:8 से कितना परसेंट कम है? 1/8. हाँ. आया ना? हम्म. Yes, sir. अगर 7:2 लेते हैं तो 2/7 से कितना कम है? 5/7. 70 point something. हाँ. ठीक है, अब आपसे अगर ये वाला केस कंसिडर ही नहीं करें बिकॉज द टू वैल्यूज दैट यू आर सिलेक्टिंग शुड ऑलवेज बी को-प्राइम। 9 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स है, गेटिंग इट? अगर स्पीड रेशियो 2:1 आ गया ना कैंसिल होके, तो 9 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट जनरेट ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो 2:1 के हिसाब से 3 ही मीटिंग पॉइंट जनरेट होंगे, 9 जनरेट ही नहीं हाँ. होंगे। गेटिंग इट? Okay, sir. 2:1 का स्पीड रेशियो है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है तो 3 ही मीटिंग पॉइंट जनरेट होंगे, 9 हाँ. जनरेट ही नहीं होंगी। तो ये वाला केस तो ले नहीं सकता हूँ, सो आंसर शुड बी आउट ऑफ द टू। और इसमें से 87.5 दे रखा है। सर ये समझ नहीं आया 2:1 वाली चीज. मैं देखो अगर एक का स्पीड 6 है एक का 3 है तो कैंसिल होकर 2:1 का रेशियो आ जाएगा। हाँ. और अगर दो जनों का 2:1 का रेशियो है ना तो वो तीन जगह ही मिल सकता है। आप एक काम करो, 200 नहीं, हाँ 200 मीटर का ट्रैक ले लो, हम्म. की स्पीड 20 की, एक की 10 की है। हम्म. तो बाय द टाइम की 200 में से, या फिर एक काम करो और इजी कर देता हूँ, 200 की जगह आप इसको 600 कर दो। तो बाय द हम्म. टाइम ये 600 में से 400 कवर करेगा, वो 200 कवर हम्म. करेगा, हम्म. वापस से ये 400 कवर करेगा जो कि 200 ही है और 200 ही है। हाँ. यहाँ से 200 अच्छा. और फिर 200, वो हाँ. 200 कवर करेगा यहाँ पे, और फिर 400 कवर करेगा, तब तक ये 200, तीसरी पॉइंट यहाँ पे होगी, मतलब तीन ही हाँ. मीटिंग हाँ. पॉइंट होगी, उसमें 9 हो ही नहीं हाँ. सकते। ठीक सर. समझना है? हाँ. तो ये चक्कर है। तो आंसर शुड बी दिस वन। क्लियर है? Yes, sir. सर व्हाट इफ 71.4 भी हो तो ऑप्शन में? व्हाट इफ? जस्ट अलाउ मी 1 मिनट।
हाँ सॉरी, ये क्लियर है क्या? शेल वी गो अहेड? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8. सर वो क्वेश्चन था कि व्हाट इफ अगर को ऑप्शंस में हाँ, 71.4 what if नहीं आएगा ना 71.4? भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ अच्छा, वैल्यू ऑफ एस? ऑप्शन से ही चेक करना है। ओके नेक्स्ट। सर. नहीं सर, ऑप्शन में ही 71.4 तो तो नहीं मैडम होगा जब ना। ऑप्शन से चेक करना है तो ऑप्शन एक ही मिलेगा ना, अपना काम क्वेश्चन बनाने का नहीं है, आंसर निकालने का है। ठीक है सर। नेक्स्ट। 8, 8, 8. एट बताने का है किसी को? नो सर. नो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई? हाँ, ऑप्शन से ही ऑप्शन से। करना है, नहीं बताना। शेल वी गो अहेड? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. तो वैसे दिस इज वेरी लेंदी क्वेश्चन ना, मतलब इस टाइम कंज्यूमिंग है ना ये वाला। जस्ट नीड टू चेक, मैं एक बार देख लेता हूँ पूरा। In a tuition, 70% of the students are male and X% of the male students and 5% of the female students are IIT aspirants. The total number of IIT aspirants who are male and non-IIT aspirants who are female is equal to the total number of students who are non-IIT aspirants who are male and IIT aspirants who are female. Which of the following could be a possible value of X? देखो, आप टोटल बच्चों को 100 ले सकते थे। आपके पास मेल है 70, फीमेल है 30, 30. है ना? X% of male, X% of male and Y% of female IIT aspirants. इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपको दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ IIT aspirants who are male and non IIT aspirants who are female. मतलब ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, बराबर? यस. इससे मुझे एक बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सी बात, वो ये है कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू इज इक्वल टू 50। कैसे? टोटल 100 बच्चा था, हाँ. इन दोनों का सम अच्छा, इन हाँ। दोनों के सम के इक्वल होगा, हम्म। तो दोनों का सम 50-50 ही तो होगा, ना? Yes, sir. या ना? कि ओके ओके, हाँ, मतलब 4 चीजें हैं, 2 चीजों का सम 50 होगा तो बाकी 2 का 50 होगा, ऐसा बराबर, हाँ। राइट राइट. ये इक्वेशन आ गई आपके पास, यस सर. ऑप्शन पुट कर दीजिए। गॉट इट सर. ठीक है, हो जाएगा सर. ये बड़ा पता, ठीक है। रिमूविंग दिस। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा करना था? 9. बताना है किसी को? नो सर. एनीवन? Yes, sir. Yes, sir. देख लेते हैं ना। jar A has 4 liters of solution that has 35% acid. jar A 4 लीटर है, 35% यानी 1.4 एसिड है इसमें। jar B has 6 liter solution and 60% is acid, 3.6 acid है। Yes, sir. jar C has 5 liter solution, X% of 5 acid है। If the entire content from jar ABC are mixed together such that the new mixture has 55% acid. यार एक बात बताओ, टोटल 15 लीटर बना नहीं बना आपको? हाँ। 15 का 55% कितना होता है? 8.25, 8.2, हाँ। जिसमें से 5 यहाँ से मिल चुका था, ठीक है। तो यहाँ से तो 3.25 3.25, मिलाओगे हाँ। तो एक्स आ गया 65%। ओके सर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट। 12. बताना है किसी को? हाँ सर. नो सर. नो सर. किसी ने तो हाँ बोला Yes, है। sir. Yes, sir. ABC has an average amount of 93, मतलब ABC को ऐड करके कितना आएगा?
कोई दिक्कत? नहीं No, सर। sir. A gives 12 to B. Average amount with B and C would be 108. B के पास B plus 12 हो गया, यस सर। तो इनका एवरेज है 108, सम हो गया 216। कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको 204 पुट कर दिया तो A 75 आ गया। तो एक बार आप प्लीज हम्म। सेकंड इक्वेशन फिर से एक्सप्लेन करोगे, बी प्लस 12 प्लस सी कैसे अगर आया? A ने 12 रुपीज B को दिया तो पहले B था, B plus 12 हो गया, हाँ, और C तो C रहेगा, ओके। और इनका एवरेज 108 है तो सम 216 हो गया। बी और सी का एवरेज, हाँ ठीक है, गॉट गॉट इट सर। If C gives 25 to A, तो A के पास 75 खुद का था, 25 और आ गया, 100 रुपए हो गया। जी सर। A and B would be 98, तो सम हो गया 196, तो B के पास 96 रुपीज होगा। सर ये मुझे भी आया क्वेश्चन। सॉरी, सर ये वापस बताने एक बार, ये शुरू 100 से बता प्लस देता हूँ, सुनो 13 वाला। सुनो शुरू से। ये समझ में आया? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ ए ने अगर 12 रुपए बी को दे दिए तो बी के पास कितने हो गए? 3 + 12। और सी के पास सी, इनका हाँ एवरेज 108 है तो सम 216 हो गया, 216। हाँ तो बी प्लस सी आ गया 200। 204। हाँ और अगर बी प्लस सी को यहाँ पे 204 पुट किया तो ए आ गया 75। हाँ ठीक है सर। ऐसा बोल रहा है अगर सी ने 25 रुपए ए को दिए, 75 उसके पास थे, तो उसके पास 100 रुपए हो गए, हम्म। तो ए और जी बी का सर। एवरेज 98, यानी सम हो गया 196, हाँ तो बी की वैल्यू आ ठीक गई है। 96। ठीक है ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट 13। 30 बताना है किसी को? हाँ सर। A project can be completed by 10 workers in a certain number of days. X days में काम करते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। If there were 2 workers less, it would have taken 3 more days. 10x equal to 8x plus 24, x equal to 12, हाँ या ना? हाँ सर। If one worker starts the project on every day, अच्छा टोटल वर्क कितना हो गया? 120, यहाँ पे x को 12 पुट करा, ठीक है। अगर पहले दिन एक वर्कर काम करता है, दूसरे दिन एक और बंदा आ जाता है, 2 वर्कर है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो ऐसे कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? n plus 1/2 equal to 120। इनको सॉल्व करोगे 15 आ जाए। कोई दिक्कत है तो बोल। No, sir. नहीं है तो shall we go ahead? Yes, sir. अच्छा। Will I remove this? तो Yes, ma'am. just एक चीज पूछनी थी, जो आपने 1 2 3 4 लिखा था ना, वो एफिशिएंसी थी? हाँ, I am assuming कि one worker can do 1 unit work in 1 day. सर तो ऐसे अजम्पशन से कर सकते हैं? तभी तो ये मैम ये लिया ना मैंने कि 10 वर्कर एक दिन में 10 यूनिट करते होंगे, हाँ, और x डेज में 10x वर्क करते होंगे, ओके, ठीक है। ठीक है, गॉट इट सर। नेक्स्ट 21। बताना है किसी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। Team A and B participate with the ratio of their scores in each round. A, B. ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है। फर्स्ट राउंड में रेशियो है 3-4, सेकंड में है कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. Scores of team A were in arithmetic progression. Scores of team B in the first two rounds were in the ratio 8:5. यार ये देखो, ये जो है अगर ये 3x होगा तो ये 4x होगा, ये 7y होगा तो ये 5y होगा, और ये बोल रहे हैं कि 4x और 5y यानी B के जो फर्स्ट टू राउंड्स का स्कोर था वो 8/5 है, तो ये 5 से तो 5 कट गया और ये हो गया 2, मतलब x को 2 पुट कर दूं और y को 1, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, हाँ या ना? ये हो गया 7, ये हो 7। गया 5, हाँ या ना?
और ऐसा Yes, दे रखा sir. है स्कोर ऑफ टीम ए आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 7 के बाद क्या आएगा? 8 8 और अगर ये 4 की जगह 8 बन रहा है तो ये 7 की जगह 14 बनेगा. 14 बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टोटल स्कोर ऑफ ए एंड बी इन द थर्ड राउंड? ए और बी का टोटल स्कोर कितना है? 22 22 का मल्टीपल. तीनों मल्टीपल है ऊपर के. ये हाँ 22 का मल्टीपल नहीं है. सर. Yes, ये एंड में क्या किया आपने 8 और 14 के बाद? 8 और 14 तक समझ में आ गया. हाँ ए और बी का मिला के 22 के आ रहा है. हाँ तो इनमें से कौन सा 22 का मल्टीपल नहीं है? 143. 143 अच्छा ठीक है. ठीक है सर. नेक्स्ट सर. सर कैन नॉट बी ऑप्शन सी करना. हाँ बोलिए. सर ये मैंने ना ऐसे किया कि इसने ऐसे बोला ना एपी में है, तो हाँ, मैंने हाँ. लिया मतलब सेकंड वाली वैल्यू मैंने बी ली थी, तो 7b मतलब 14b इक्वल्स टू 3a प्लस 4c, 2b इक्वल्स टू a प्लस c. कर सकते हैं तो कोई c दिक्कत. है ना. हाँ 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 बिल्कुल. पार्ट 1 कंप्लीट है क्या? हाँ सर पार्ट 2 पे आ जाइए. बोलिए. 5 6 5. हाँ ठीक है. देखते हैं. बताना है किसी को? यस यस सर. सर. ए क्या दे रखा है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 98, 3 की पावर 99, 3 की पावर 100. हाँ या ना? यस सर. If B is a subset of A such that geometric mean of no two elements is 3 power 50, let us assume आपने 3 पावर 0 और 3 पावर 100 लिया. इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट. रूट. हाँ तो ये हो गया 3 पावर 100 का 10 रूट. मैडम 100 प्लस 0 100 ही तो होता है. सॉरी से 100. हाँ 3 पावर 50 आ गया. हाँ है ना? हम्म. ये बोल रहा है कोई से भी दो एलिमेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन 3 पावर 50 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब अगर मैंने 3 पावर 0 लिया तो मैं 3 पावर 100 ले सकता हूँ क्या? नहीं. और अगर 3 पावर 100 लिया तो 3 पावर 0 ले सकता हूँ क्या? नहीं. मतलब इन दोनों में से एक ही वैल्यू ले पाऊंगा. हम्म. ले लो. ये ले लिया. ये हट गया. हाँ है ना? हाँ 3 पावर 1 और 3 पावर 99 का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए. 3/50. मतलब इन दोनों में से एक ही वैल्यू लूंगा. ये ले लिया. ये हट गया. हाँ है ना? ठीक है. हाँ ये वैल्यू ले लिया. ये हट गया. हाँ है ना? हाँ. ये वैल्यू ले लिया. ये हट गया. हाँ है ना? चलते हम्म. चलते 3 पावर 49, 3 पावर 50, 3 पावर 51 आएगा. हम्म. 3 पावर 49 ले लिया. 51 हट तो गया. ये हाँ नहीं है ले ना? सकते. हाँ. और 3 पावर 50 भी ले लिया. अच्छा 0 3 से पावर 3 पावर 50 ले 50 तक सकते हैं. सारी वैल्यूज ले रहा हूँ. आंसर कितना आएगा? 51. खत्म. सर कोई 3 डाउट? पावर 50 ले सकते हैं मैडम अकेला. उसका किसी से भी ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं बैठेगा. आप हम्म. बोलो 3 पावर 50 के साथ किसी दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल के 3 पावर 50 लाना है. तो जो दूसरी वैल्यू है ये भी 3 पावर 50 ही होनी चाहिए तभी आ पाएगा. हम्म. आपने 3 पावर 50 एक बार लिया है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन किसी और के साथ आ ही नहीं सकता. ठीक है डन सर. चले आगे. हम्म. यस Yes, sir. बोलिए. 10 10th बताना है किसी को? 10th को पार्ट 3 में डाल दीजिए. मैंने गलती से बोल दिया होगा पार्ट 2. इट शुड बी पार्ट ऑफ पार्ट 3. सर ठीक है 10th सर. थर्ड पार्ट में ही था. यार क्या चाहते हो? तुम गलत क्यों बताते हो? सॉरी सर माफ कर दो. अगली बार नहीं करूंगा. नेक्स्ट. सर 18 बताना है किसी को? नो सर. नो सर. नहीं. चले आगे. यस सर. नेक्स्ट. 20 बताना है किसी को? नो यस सर. सर. नो Yes, सर. sir. हाँ सर. यस देख सर. देख लेते हैं. ऐसा दे रखा है यस 4 सर. mod x प्लस 3y 18, 3x प्लस 2 mod y. हाँ या ना? Yes, यस sir. सर. x पॉजिटिव y पॉजिटिव. Y पॉजिटिव. अगर ऐसा है तो 4x प्लस 3y 18, हाँ. 3x 3x प्लस प्लस 2y 2y माइनस माइनस 5. जल्दी से x और y का वैल्यू निकाल दो. x इज -51. बराबर. सॉल्व ही नहीं करना था मेरे हिसाब से तो. हम्म. क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव लिया.
हाँ तो दो पॉजिटिव वैल्यू ऐड होके -5 कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती। मतलब ये तो गलत है। आगे चलते हाँ। हैं। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, बेटर हाँ 4x + 3y = 18, 3x - 2y = 3x - 2y = -5। अभी सॉल्व करके बताओ x कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है, -21 x is -21 और y सर ये नहीं निकाला क्योंकि x is गलत, greater than क्योंकि 0 x को कट है पॉजिटिव हाँ जाना था। हाँ x नेगेटिव, y पॉजिटिव। हम्म -4x + 3y = 18, 18 3x 3x + 2y + 2y = -5। अब x और y का वैल्यू निकाल के बताओ। x is -3 y is 2 ये सही है क्योंकि आपने बोला था x हम्म नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव आ गया। x नेगेटिव, y नेगेटिव, तो सर ये करना है क्या चेक आगे हाँ, अच्छा -4x + 3y 18 और 3x - 2y -5। जल्दी से सॉल्व करके बताइए x और y का वैल्यू। जस्ट सेकंड x equals to -21 y = y equal to x सर यही गलत हो गया ना, x ग्रेटर देन 0 इस x is less than x x नेगेटिव is है less y। than 0 सर जो भी वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है y की पक्का मेरे हिसाब से तो नेगेटिव आ रही है। सर -84 + 3y = 18 मैडम -84 क्यों होगा, +84 नहीं होगा, -4 सही, -4 × -21 हाँ सर सॉरी नेगेटिव आ रही है कितनी आ रही है, कोई बताएगा? -29 पक्का सही है क्या, एक बार चेक कर दो यार। सही है सर। सही है, चलो। अपने को निकालना था 6x - 5y। जल्दी से हाँ x को -3 और y को 2 पुट करो। -3 × 6 -18, -18 -5 × 2 -10 -28 सर आ मेरी 34 आ रही है वैल्यू y की। यार हाँ क्या क्योंकि है, तुम लोग 3y इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? सर -12x + 9y = हटा दिया 54 और 4 से किया 12x - 8y = -20, ऐड किया ये कट गया, y = 34। 34 आ रही है हाँ तो y 34 मतलब गलत हो गया, y तो नेगेटिव आना चाहिए था। हम्म ये आंसर आ गया -28। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसको हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, 6x - 5y की वैल्यू से आप x और y तो नहीं निकाल पाएंगे ना एक इक्वेशन से। सर जैसे मेरे पास ये है 4x और 3y, इससे इससे तो निकाल सकते हैं ना? 4x और 3y से 6x - 5y कैसे निकालेंगे मैम? नहीं नहीं, मतलब मैं कह रही थी जो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है ना 4x + 3y = 18, इसको इसमें x और y की वैल्यूज पुट करने के लिए। बट x और y लाएंगे कहाँ से, ना तो ऑप्शन में x और y का वैल्यू। ओके समझ रहे हो? और ऐसे थोड़ी बोला इंटीग्रल ही होना चाहिए, डेसिमल में भी तो आ सकता है, कहाँ तक पुट करते रहेंगे। राइट, ठीक है सर, ठीक है। चला रिमूव सर दिस। मेरा एक छोटा सा डाउट है सर यस मैम बोलिए। सर ये -4x + 3y = 18 सॉरी -4x + 3y = 18 के अंदर अपन -21 पुट करेंगे हाँ, तो ये 84 + 3y = 18 3y -24 भी गलत आ रहा होगा ना मैडम आपका। हाँ सर -20 +24 आएगा 108 आएगा। अच्छा 100 एक सेकेंड, 102, 102 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बच गया कितना, -84 -4 x = हाँ सर 21 गलत आ रहा है +21 है, 21 आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है हाँ तो ये भी गलत ही है ना। ठीक है, चले आगे। हाँ चलो लेट्स रिमूव दिस, गोइंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 20 था, इसके बाद सर वो फेज खत्म हो गया, थर्ड वाला स्टार्ट हो गया। थर्ड पे आ गया। बताइए, 1 1 फर्स्ट। बताना है किसी को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, किसी को पूछने का है पूछ लीजिए। नहीं रहने सर दो सर।
नहीं? एनीवन? नहीं। नहीं। नेक्स्ट 3। बताना है किसी को? यस सर। यस। नहीं सर, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या? पता नहीं, देखता हूँ मैं. It is हाँ, एक mandate बार। for all the students of a class to take part in at least one sports event and at least one cultural event. There are 6 sports and cultural events that were organized. There were 10 participants and 20 participants in each of these events, respectively. Every student participated in 3 sports and 5 cultural events. What is the value of n? ठीक है. नहीं, PNC नहीं है मैम. सर ये सेट थ्योरी है क्या? आई गॉट कंफ्यूज्ड कि ये सेट नहीं, ये थ्योरी सेट थ्योरी जा रहा नहीं है है. क्या? मेरे हिसाब से इक्वेशन है केवल. सर एक बार अच्छा, बता दो सर फिर बता दीजिए। हाँ। देखो, ऐसा दे रखा है कि हर बच्चे को एक स्पोर्ट और एक कल्चरल इवेंट में लेना, पार्टिसिपेट करना जरूर. बराबर. हम्म। There were 6 sports events and there were 10 participants in each of these events. हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. यस Yes. सर. मतलब टोटल 60 पार्टिसिपेट्स हो गए. 6। जी हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Every student participated in 3 sports. हम्म। तब टोटल डिवाइड 20 बाय 3। बच्चे हो गए आपके पास. हम्म। ठीक है, आगे चलते हैं. सर टोटल 20 क्या निकाला आपने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब ठीक है सर. There were 10 cultural events and 20 participants in each. मतलब 20 and total हो गए. And there were बाय 5। 5. हाँ, 4n। And this should be equal to 20 number of students. सर 20 कैसे, मतलब 20n/5 इक्वल्स टू 20 क्यों किया अपन ने? समझो समझो समझो. एक हाँ। क्लास थी, कितने बच्चे थे पता नहीं, हाँ। लेकिन 6 स्पोर्ट्स इवेंट थे और हर बच्चे में, हर स्पोर्ट्स में 10-10 बच्चों का पार्टिसिपेशन है. हम्म। तब टोटल 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हर बच्चे ने 3 में पार्टिसिपेट किया, मतलब टोटल तो 20 बच्चे. 20 हो गए। तो हाँ। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 था. अच्छा, यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी टुक, ठीक है। अब एन इवेंट से सब में 20 बच्चे आया, मतलब 20 हम्म। पार्टिसिपेशन है और हर बच्चे ने हम्म। 5 इवेंट में पार्टिसिपेट किया है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4n हो गया और अभी तो आप बोल रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, तो n इक्वल टू 5 आ गया. हम्म। डन। ठीक है. हम्म। Shall I remove this? यस सर। नेक्स्ट 4। बताना है किसी को? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाना चाहिए था. देखते हैं. द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 100 डिजिट नंबर इज 100 डिजिट का एक नंबर है. इसका सम मैक्सिमम कब आएगा? जब सारी डिजिट्स क्या हो. 9. 9. और अगर सारी डिजिट्स 9 है तो इस नंबर का सम ऑफ डिजिट कितना हो गया? 900. तो ए का वैल्यू 900 आ गया. कोई दिक्कत है तो बोल. नो नो सर। मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 100 डिजिट नंबर इज ए. जो मैक्सिमम सम है वो ए है, तो ए 900 हो गया. हाँ या ना? हम्म। Yes, sir. मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर लेस देन ए. ए से जस्ट छोटा एक नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट मैक्सिमम हो, वो क्या होगा? 899. 899. 899। 899 का सम ऑफ डिजिट 899। कितना होता है? 26. तो 26 हो गया बी. हाँ. कोई दिक्कत है तो बोल दो. Sir, 26 कहाँ से आया? मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर लेस देन 8. 900 से छोटा नंबर, उसका मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट इज बी. तो 900 से छोटा नंबर मैंने ये लिया, इसका सम ऑफ डिजिट 26, तो 26 इज बी. Okay, okay. ठीक है, sir. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए. ठीक है, ठीक है. The maximum sum of digit of a number less than b is c. 26 से छोटा नंबर और मैक्सिमम एसओडी 19 है, जिसमें सम ऑफ डिजिट 10 ला सकता हूँ. 10 से बड़ा ला सकते हो क्या?
सर मेरे को एक डाउट है। हाँ आपने उधर बी के लिए छोटा नंबर 899 लिया था, हाँ लेकिन तो इसके बाद इससे छोटा नंबर आना चाहिए था ना 899 से। जैसे कि जैसे कि अपन वही सर 898 ले लो। आपको एसओडी को मैक्सिमाइज करने का है। हाँ तो 898 का एसओडी होता है 25, हाँ 899 का होता है 26। हाँ। कौन सा लोगे? 25। अरे मैक्सिमाइज करने का है भाई। बी के लिए सर, बी के लिए नहीं, बी का तो समझ में आ गया, मैं सी की बात कर रहा हूँ। नहीं, B26 आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत? हाँ सर, नहीं यहाँ सर। दिक्कत नहीं है, पर ये 19 कैसे आया? अब आप क्या लेना चाहते हो? 25 लेना चाहते हो? तो सम 7 एसओडी 7। चॉइस लेना चाहते हो? 6 6। 23 लेना चाहते हो? 5 22। 4 3 2 10 फिर रिड्यूस होने 9। लगता ठीक है, ओके सर। है। यस, 10 ही तो आएगा। हम्म। शेल आई रिमूव दिस? यस अच्छा, आप सर। सी के लिए 100 डिजिट नंबर अज्यूम नहीं कर रहे ऐसा? नहीं नहीं, सी तो बी से छोटा नंबर विद मैक्सिमम एसओडी है। नहीं सर, ये मैक्सिमम एसओडी वाली बात तो मैं समझ गया। इसने सर जैसे आपने ए को 900 100। से 899, बी इज 899 नो? नहीं, बी इज एसओडी ऑफ 899। ओ उस अच्छा, ठीक है सर, मतलब ए फिर बी इज 26, फिर बी से लेस सी। रीड द क्वेश्चन अगेन। द मैक्सिमम एसओडी ऑफ अ 100 डिजिट नंबर इज ए। ए क्या है? इस नंबर का एसओडी। हाँ या ना? यस सर। द हाँ मैक्सिमम एसओडी ऑफ अ नंबर लेस देन ए इज बी। बी क्या है? इस नंबर का एसओडी। हाँ द मैक्सिमम एसओडी ऑफ अ नंबर लेस देन बी इज सी। नंबर 19। सी क्या है? इस नंबर का एसओडी। हाँ। हाँ सर, आ गया अरे समझ। मैं बोल रहा हूँ 26 से नीचे वाले सारे नंबर्स कंसीडर कर लो। सम ऑफ डिजिट को 10 से बड़ा ला सकते हो क्या? सर समझ गया सर, बट अब ये पॉइंट है कि 26 से नीचे के नंबर लेने चाहिए। हाँ समझ गया। हाँ, क्योंकि ऐसा दे रखा है द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर लेस देन बी एंड ओ बी इज समझ गया सर 26। सर। क्लियर है? चले आगे। यस सर। यस सर। हटा दूं? हाँ। हाँ हाँ। चलो, गोइंग अहेड। नेक्स्ट, 4 के बाद 6 6 एक सेकंड यार, बैटरी कितनी बची? 9। 6 ना? बताना है किसी को? हाँ सर। Okay, let's take it out. There are two concentric circles. Concentric circles क्या होते हैं? एक सर के यही अंदर नहीं एक आया। एक के अंदर एक, बराबर? यस सर। नहीं, सेंटर फिर सेम होता है। तो मैडम ऐसे बोलने का ना, सेम सेंटर वाले सर्किल एक के अंदर एक क्या होता है? ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। सर्कल्स विद द सेम सेंटर। क्लियर है? A person starts running from a point on the outer circle in a straight line which touches the inner circle. ऐसे रन कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। After running for 50 minutes at 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर 50 मिनट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12.8 इंटू 50। आंसर 10। बोलने का है भाई। 10। He reaches only a point in the outer circle. मतलब ये पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर का हो गया, हाँ या ना? हाँ सर।
If the radii of both the circles are integers, what is the difference between the diameters of the two circles? एक ये है, हाँ एक ये रेडिया है। कोई दिक्कत? नो No, सर sir. X, Y. Y square equal to X square plus 100. हाँ सर। हाँ हाँ, क्या निकाल सकते हो? नहीं क्या बात कर? Y square minus, sorry, Y square minus X square equal to, अब सर ये तो रिटर्न ट्रायल भी निकालना पड़ेगा ना। नहीं सर, Y plus x, y minus x equals to 100. हाँ 100 कैसे ला सकते हो? 50. Oh, sorry. हाँ 100 50 sir. 50 हाँ हो 25 और सेम रिपीट हो जाएंगे 520। बस यही 5 केस बनेंगे। हाँ सर। यार अगर एक बात बताओ, y plus x 100 है, y minus x 1 है, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे 2y कितना आ गया? 99 ए भाई ऐड कर रहा हूँ, 101. और तो y कितना आ गया? 101. अरे 50. y शायद 10 और 6 आ सकता है ना, 10 और 6, y और x। सो 25 into 4 वाला केस ले लें तो 40 की मैम वहां तक भी 10 और 6 Sir, अलग 50.5. है ना? 2.5, 50.5। हाँ ऐसे 50.5. रेडिया ऑफ बोथ द सर्कल्स आर इंटीजर, y 50.5 हो सकता है क्या? नहीं ऑप्शन गलत है। लॉजिकली सोचो, इन दोनों को ऐड करके तो हमेशा 2y ही आएगा। क्या सर? इन दोनों को ऐड करके तो हमेशा 2y ही आएगा। हाँ सर। हाँ 100 प्लस 1 101 ऑड नंबर, तो 2y ऑड नंबर हो ही नहीं सकता।